سے نہیں کرنی, آپ کی جماعت کے عقیدے پہ کرنی ہے میرے بات. میں بھی آپ کو وہی عقیدہ بتا رہا ہوں جو قرآن کے مطابق ہے. یعنی جماعت احمدیہ نے اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں بالکل نہیں، مختلف پہلو ہو سکتا ہے ایک بات کے. آپ بتائیں وہاں پہ کیا لکھا ایک ہے، بات کے مختلف بتائیں وہاں پہ کیا لکھا. میں وہ امتیاز صاحب آپ مناظرے پہ آ جائیں پھر اس ٹائم یہ لے بات لوں گا تو وہ دیکھ لیں گے سامنے اس کو. نہیں نوید بھائی، مناظرہ تب کرنا ہے جب بات تو طے ہو جائے نا. یہ تو بات پوری نہیں بتا رہے ہیں. میں بتا دوں گا. ابھی جو انصر صاحب ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. ابھی جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے، اس عقیدے کو مرزا صاحب نے ابن عربی کا عقیدہ کہا ہے، اور کیا وہ غلط ہے؟ ابھی جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے، یہ اس وقت بات کر لیں گے نا، اب آپ آئیں گے تو بات کر لیں گے. نہیں آپ پہلے اپنا عقیدہ ابھی درست تو بیان تو کریں پہلے، اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نبوت جاری ہے بغیر شریعت کے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ابھی یہ جو الفاظ بولے ہیں نا، آپ نے جماعت احمدیہ کا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا. امتیاز میں نے صاحب آپ سے سوال کیا جب تھا. آپ مناظرے پہ آئیں گے نا میری جان، تب آپ یہ سارے کلیم اور ہر چیز یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو دیکھیں آپ کی بات شروع نہیں ہوئی، تو اس کو کمپلیٹلی جو آپ نے بھائی مناظرہ نوید بھائی معذرت کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف کا دعویٰ پہلے موجود. یہ اپنا دعویٰ ہی بیان نہیں کر، یہ میں بتا جعلی رہا دعوے میں کر رہے ہوں، ہیں میں آپ آپ کو بتا رہا ہوں دعویٰ کیا ہے. کہ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ آپ قرآن اس کریم ٹائم پوچھ لینا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی روح سے بغیر شریعت کے نبوت جاری ہے. یہ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے ابن عربی کا عقیدہ قرار دے. غلط کہا اس کو انہوں نے. ہم اس وقت ادھر نہیں جا رہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کیا کہا ہے. ہم یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے عقیدے پہ بات تو کرنی ہے آپ سے. کوئی تو بات ہے ساری. نہیں میں نے قرآن کی روح سے بات کرنی ہے. قرآن کی روح سے یعنی مرزا صاحب کا عقیدہ قرآن کے خلاف تھا. پھر خلاف ہے یا نہیں وہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے. ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے. میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بات کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ دوبارہ سوچ لیجئے گا. میں نے سوچ لیا. ہاں میں سن لیں، مجھے آخر سے بات کرنے دیں. جس دن آپ یہ محسوس کریں، جس دن آپ محسوس کریں نا کہ آپ جماعت احمدیہ کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا عقیدہ ختم نبوت اجراء نبوت تحریر کر کے کسی کو دے سکتے ہیں جس پہ آپ نے بات کرنی ہے، اس دن مجھے بلا لیجیے گا. بہت شکریہ. ہاں اس دن آپ کو بلا کے مطلب ہے کہ گل نہیں کرنی نا، پھر نہ کرنا نکلنا ہوئی ہے نا. جی یہی بات ہے. وہ جس طرح مراسی کہتے ہیں نا کہ چودھری صاحب نہ ہی سمجھا نا پھر میں وہ حساب ہے ان کا کہ میں نہیں آتا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میسیج دیا گیا ہے اپنے آپ کو اسپیشل، پھر کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں سارا دن میں سن رہا ہوں اور آپ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے. ہاں تو اور کیا کریں یہاں پہ بیٹھ کے ہم چنے بیچ رہے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے عقیدہ تو بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی. جی شیخ صاحب آپ نے کوئی بات کرنی تھی. نوید بھائی میں نے یہی کہنا تھا، کل سے ماشاءاللہ جس طرح چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ریکارڈنگ کر کے جو ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں کہ یہ کفار مکہ والا کام کر رہے ہیں. سارے مسلمان، یہ جتنے 20-25 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ٹک ٹاک پر یہ مسلمان، اور یہ جو رد قادیانیت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کل سے 5 سے 6 براڈ پر ایک ہی بات کری جا رہے ہیں. ہم ان کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور یہ جا کر مرزا صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں. تو یہ کیا یہ ان کے پاس قرآن جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے، یا قرآن سے یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ قرآن کو ترک کر چکے نا. یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ خدا نے قرآن میں کہہ دیا، انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. بیگم کا فون آیا میرے پاس کہ آپ کے چہیتے آ گئے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا شیئر کرو، اور میری بیگم نے شیئر کی لائیو. میں وہاں پہنچ گیا فوری طور پہ. انہوں نے مجھے اٹھا بھی لیا. اچھا، اور میں نے سوال کرنے شروع کیے. آبویسلی درمیان میں وہ مجھے کام میں بزی ہوا، تو پھر نائٹ رائڈر بھائی بات کر رہے تھے. جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے آخری سوال کیا ان سے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میں نے کیا سوال کیا، کہ عدل کے بارے میں. اور کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے جو کیا وہ عدل کیا. اب بے شمار کوشچنز اور ہیں. مرزا صاحب نے وہ 1888 میں یہ کیا تھا کام، ٹھیک ہے. اس وقت وہ نبی تھے نہیں تھے، بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے ان کا جو رویہ دیکھا ہے انصر رضا صاحب کا، وہ یہ کہ جگتیں مارتے ہیں
اور دوسرا بندہ کوئی بھی ہلکی سی بھی بات کر لے، جیسے سیکر نے کہا کہ جی آپ تازہ تازہ جلسہ سالانہ سے آئے ہیں، تو ان کو بہت بری لگ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ ہر بندے کو جگتیں مارتے ہیں اور خود جو ہے نا ایک جگت بھی برداشت نہیں کرتے. یہ بیہیویئر ہے، اور ایک موقف نہیں دے پا رہے. جو امتیاز بھائی نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، اور جتنا ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان لوگوں نے انسلٹ کر کے نیچے اتارا ہے نا، یہ مجھے آج کی تاریخ میں 6 دفعہ یا 5 دفعہ انویٹیشن بھیج چکے ہیں، میں اوپر نہیں گیا، صرف اس احتجاج میں کہ بھئی آپ نے اگر بدتمیزی ہی کرنی ہے تو آپ مجھے انوائٹ کیوں کر رہے ہیں. اور میں نے یہ سوچا بلکہ کہ اگر میں اوپر جاؤں گا نا تو میں ان سے کہوں گا کہ انصر رضا صاحب کائنڈلی ایک دفعہ دوبارہ سے بولیں، ان کو نیچے پھینکیں، تاکہ جو ہے نا یہ مجھے نیچے پھینکیں. میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی. میں معذرت میں ذرا سا ایموشنل ہو گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ انصر رضا اپنے براڈ میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس لیے یہ بات کر سکتا ہے. یہ ذرا سا باہر نکلے تو یہ پانی بھی پیتا رہے گا اور اس کو پسینے بھی آتے رہیں گے. ابھی بھی اس کی جو کام پہ ٹانگ رہی ہے نا، یہ وہ والی صورتحال ہے اس کی. یہ تو ایسے جیسے بھکلا گیا ہے. یہ کسی بھی اپنی جماعت کے عقیدوں کی بات ہی نہیں کر رہا. بالکل دیکھیں نا ابن آدم بھائی، میں آپ کی جو پوری کنورسیشن تھی وہ میں ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی بھی پتہ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ آ گئے. جی جی امتیاز بھائی والا دیکھا ہے، امتیاز بھائی وہاں پہ گئے تھے، بچہ بنا کہتا نہیں بتانا میں سارا یہاں بیٹھ کے سن رہے تھے یار. کیا وہ بندہ کہتا مرزا صاحب کا عقیدہ چھوڑو، میرے سے بات کرو. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے کیا نہیں کیا وہ چھوڑو. اچھا ایک بات بھی آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے جب امتیاز بھائی نے بولا نا کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ مرزا صاحب کے عقیدے میں بات کر لکھ کے دے سکیں تو میں بات کروں گا، تو اس نے آگے سے بولا اس کا مطلب ہے پھر بات نہیں ہو سکتی. ہاں دا مرزا صاحب کا وہ کہتا ہے مرزا صاحب کی کبھی بھی اس قابل ہوں گے ہی نہیں کہ میں مرزا صاحب کا صحیح عقیدہ بیان کر دوں. یہی تو مسئلہ ہے. نہیں یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرزا صاحب کا عقیدہ ایسا نہیں تھا جو لکھ کے دیا جا سکے. یہ بھی مجھے نا نائٹ رائڈر بھائی سے ایک شکایت کر لینے دیں. نائٹ رائڈر بھائی ہیں آپ؟ السلام علیکم. سر حاضر. نہیں آپ نے اس دن کیا کہ یہ بات کیوں کہی تھی کہ میں لفظوں کو پکڑتا ہوں؟ کیوں کہا تھا آپ نے؟ غلطی ہوگی. میں نے بھی یہی شکایت کی ہے. نہیں آپ نے یہ کہا کہ تو اب اس نے آپ سے اس بات کے اوپر جان چڑھا لی ہے. نہیں میں نے کہا جماعت میں اس کی عزت ہے. آپ کیا کہا تھا نائٹ رائڈر بھائی نے؟ میرے سے بات اسی تو میں کہتے ہیں آپ لفظوں کو بہت پکڑتے ہیں. میں نے کہا جی ایک بات بتا دوں کہ میری بڑی گندی عادت ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں لفظوں کو بالکل پکڑتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے لیے تو میں رعایت ہی نہیں کروں گا، میں آپ کا ہر لفظ پکڑوں گا، کیونکہ لفظ پر تو عقیدہ بنتا ہے. الفاظ تو عقیدے کی بنیاد ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرے غلط تو ہم اس کو کیا کہیں؟ اب انہوں نے ایک بات کی کہ دیکھیں وہ اس پر بات ہو رہی تھی نا، هو الذی ارسل رسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا. تو بعث کا معنی انہوں نے کر دیا پیدا ہونا. تو جب انہوں نے بات ختم کی، میں نے کہا جی آپ نے بعث کا معنی کیا ہے پیدا ہوا امیین میں، تو میں نے کہا آپ نے یہ بعث کا ترجمہ پیدا ہوا یہ کیسے کر دیا؟ اچھا آج کیا میں کہتا ہوں کہ بھئی کیا بات ہے جو آج انہوں نے اس پر جواب دیا نا، میں حیران ہو گیا. اچھا میں مثال بول رہا ہوں ابھی آپ لوگوں سے، میں آپ لوگوں سے ابھی فارسی بول رہا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ باسا کا مطلب لے رہے ہیں پیدا، تو مجھے ثابت کریں باسا کا مطلب پیدا ہونا ہوتا ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں جی آپ نے اس دن یہ کیا. میں نے کہا جی یہی تو بات ہے، لفظ ہے لفظ. اور بعثت رسول، پھر آج میں نے کہا رسولوں کے لیے، انبیاء کے لیے جو بعثت کا لفظ پورے قرآن میں مجھے دکھا دیں کسی نبی کے لیے پیدا ہونا لکھا گیا ہو. تو کہتا ہے نہیں میں نے تو اصل میں آپ کو پیدا ہونا بتایا تھا. فارسی میں پیدا ہونا کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا.
हाँ मैं भाई तेरे ना फारसी में बात कर रहा हूँ, मैं तो उर्दू का कह रहा हूँ। आपने उस टाइम मैंने कहा फिर आप उस टाइम मुझे ये जवाब देते कि नहीं मैं तो फारसी का पैदा होने वाला बात कर रहा हूँ। मैं फारसी की गल कर रहा सी, उर्दू में तर्जमा किया उन्होंने कि नबी तुम उम्मीयीन में पैदा हुआ। अब पूरी उर्दू बोल रहे हैं और पैदा हुआ फारसी कर दी। आज भी जो उन्होंने पंक्चर लगाने की कोशिश की है कि मैं तो वो फारसी वाला पैदा होना कह रहा था। वाह जी। नहीं डॉक्टर भाई, आज मैंने 2 सवाल जो कुरान से पूछे सुने आपने? नहीं आपकी बात मैंने नहीं सुनी, सॉरी। अगर कोई किसी भाई के पास लिंक है इब्न आदम भाई, वो लिंक यूट्यूब का है, अगर आप सुना सके नाइट राइडर भाई को। ये प्ले करूं उसको या मैं भेज दूं इसको? नहीं प्ले कर दे यहाँ पे। वो जाहिद जमील भाई ने वो अपलोड किया यूट्यूब पे, उनके चैनल पे है। हाँ जी, लेकिन मेरे पास फोन इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली राइट भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम अकबर भाई। कोशिश करता हूँ राइट भाई, आई वाज द फर्स्ट वन टू डिबेट विद हिम, लेकिन टुडे मैं आज तो मैं पहले ही था, मैं बहुत पहले से जाके बैठ गया था, उनके आने से पहले ही बैठ गया था। फिर क्या हुआ? तो मैंने तो वो उसकी तौहीद पे रगड़ा लगाया, मैंने सारा पढ़ा, अंता मन्नी मंजिलत वलदी तौहीदी और क्या बोलते हैं सारा ना, और मैंने कुरान की आयतें पढ़ी। मैंने कहा ये कैसे एक मुझे बताएं नबी जो है वो दावा करता है लेकिन वो शिरकी अकायद कैसे रख सकता है, इतना बड़ा शिरक कैसे कर सकता है? तो उसके उन्होंने जवाब ने कहा पहले आप ये बताएं आप नबूवत को जारी समझते हैं कि खत्म? मैंने कहा भाई मेरा इसका जवाब उसके बाद मैं कुरान से साबित करूंगा कि बेटा कहा जा सकता है। हाँ ये भी कहा वो तो मैं कुरान, मैंने कहा कुरान से बेटा साबित करेंगे? या अल्लाह खैर। लेकिन आज मैं क्या नाइट राइडर भाई आज मरबी सही हाथ चढ़िया सी, वारी वारी सारे ने सही चढ़िया आज माशाल्लाह, सारे मुसलमानों ने ना आज उसको जो जा रहा उसको रगड़ दिया। अच्छा ये भी तो क्लिप चाहिए यार कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ अल्लाह के लिए बेटा। हाँ ये भी तो बात, ये भी तो होनी चाहिए। अच्छा भाई लोगों, ये मैं यूट्यूब पे प्ले करने लगा हूँ, आप बताइएगा ये आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी वहां बाहर पौधों को पानी दिया था आप लोगों ने? नहीं हमें नहीं आ रही। नहीं आ रही। अच्छा चले मैं दूसरे फोन पे चलाता हूँ। अच्छा जी, ये नीचे अब्दुल वाहिद भाई कह रहे हैं कि ये मनूस चेहरा हटा दो, डर लग रहा। हेलो जी, ये था उनकी करिए, डरते वाकई लग रहे हैं लेकिन उनकी करिए। मैं अब भाइयों को एक बात बता दूं, कल कोई भाई जब प्रोग्राम बना रहा है कल जाने का सवाल, तो आपने जो उसने आज बातें की हैं ना, मिसाल के तौर पर उसने हदीस की इनकार किया है या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का जो अकीदे के ऊपर उसने कहा है, आप लोग इसके ऊपर चेक कर लें, इसके ऊपर तैयारी करके फिर जाके सवाल करें। आप जब सवाल करो तो आपको उसके सारे पहलू नजर आऊं। देखिए साहिल भाई, मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ। बात ये है, मैं जितनी भी अहमदियों की लाइव पे जाता रहा हूँ ना, उनसे जब बात हुई है ना तो पता है क्या मुझसे कहते हैं कि जी आप मुनकर हदीस हैं। ठीक है, ये मुझसे इन्होंने कहा है कि आप हदीसों को नहीं मानते। मैंने कहा भी ये आपने कैसे अखज़ कर लिया कि वो जी आप तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फाशुदा मानते हैं, तो फिर आप उसका मतलब ये कि वो जो हदीस है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र है उसको नहीं मानते। मैंने कहा ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। तो हदीसों का मुनकर ये करार देते हैं, और अंसर रज़ा साहब ने तो खुल के जो है ना हदीसों का इनकार किया है। ये वैसे बड़ी मज़ेदार बात है। चले, मेरा सवाल इसी वजह से तो था, मैंने अपना जो सवाल रखे थे ना उसके अंदर हदीस को शामिल कर सकता था मैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसको कहा ना कुरान से जवाब देना है। तो आप सुनिएगा उसके ऊपर करता क्या है ये। आबिद भाई आए हैं। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी नाइट राइडर भाई, साहिल भाई, आसिफ साहब मोहतरम, आज तो यार बड़े बड़े नाम यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई क्या हाल है? आज सारे ही माशाल्लाह अपने अपनी जगह पर सारों ने रगड़े दे रहे हैं, पर ये सारे माशाल्लाह सारे जो है वो पता नहीं हाथ चढ़िया सी उन्होंने रगड़ा फेर के आबिद भाई चपड़े मार आपका आबिद भाई चपड़े मारने को दिल कर रहा है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। आबिद भाई आपका दिल कर रहा है चपड़े मारने को?
पहले ये बताए यार वैसे हाल तो बड़ा बुरा ही हो रहा है, बहुत पैड़ी हो रही है। जी मैं मार रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा ये जो अकायद की बात हो रही है जैसे अभी बात की, तो ये नासिर अहमद का क्लिप भी मैं शेयर करता हूँ भाइयों के साथ, जहाँ पे वो मकाम महमूद को हर एक के लिए वो ओपन करता है। हालांकि हाफिज भाई एक मिनट रुके ना यार, एक मिनट। हाफिज भाई आपको पता नहीं चला कि 2 दिन से क्या ड्रामा हो रहा है? हाँ हो क्या रहा है अभी भाई? आबिद भाई थोड़ा से डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे। आबिद भाई ये आप शक्ल देख रहे हैं कि आप शक्ल देख रहे हैं किसकी लगी हुई है यहाँ पे? जी आबिद भाई सिर्फ आफ्टर शॉक देख रहे हैं, असल तो देखा ही नहीं आपने। मुझे पता है, मैं तो खुद एक दफा जब भी ब्रॉड पे आया हूँ तो वो जो अब्दुल वाहद भाई ने बात की तो मेरी भी यही कैफियत थी। ठीक है जी। तो आबिद भाई बशीरिया गल वध गई है, गल वध गई है बहुत ज्यादा। देखे एक बात हकीकत है कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की लानत पड़ती है ना तो वो नजर भी आती है। ठीक है जी। तो ये बात है कि इसलिए देखिए अब्दुल वाहद भाई वो माशाल्लाह हमारे भाई हैं, लेकिन वो इतना वो इल्म रखते भी नहीं है, लेकिन उनको शौक है अपने दीन को समझने का, सुनने का। वो आते हैं ब्रॉड पे चुप करके बैठ के सुनते हैं, इल्म हासिल करते हैं। तो उनको भी नज़र आ गया कि देखें लानतें कितनी पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। तो ये तो एक ऑब्वियसली चीज़ है, और जिस पे लानत पड़ी हुई हो तो फिर उससे डर तो लगता ही है ना, क्योंकि वो अजीब लगता है तो वो फिर लगता है ऐसे। वो उन्होंने सही बात की। बहरहाल जहाँ तक अकायद का इनका तल्लक है तो देखें कि टाइम ज़रूर थोड़ा सा लगा, लेकिन वो भी टाइम ऐसा लगना नहीं था। अगर सोशल मीडिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के टाइम पे होता तो ये टाइम नहीं लगना था। देखें आप इनकी खबासतें, इनके जो अकायद, तो ये सब खुल के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल सामने आ रहे हैं। ठीक है। तो यही मैं वो साहिल भाई की एक कन्वर्सेशन लगाने लगा था जो उनके साथ अंसर साहब के साथ हुई है, सुन लें जी। तरीका चला आ रहा था जो 1,24,000 अंबिया में कमोबेश ये जो तरीका आया, अल्लाह ताला ने अब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने ये सुन्नत तब्दील कर दी ना। जो एक तरीका सुन्नत तो तरीका है ना, एक तरीका चला आ रहा था 1,24,000 में, अब वो तब्दील हो चुका। मैं इसका जवाब दे चुका हूं आपको। अच्छा थोड़ा सा साहिल भाई की बात है। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं साहब? आप कैसे हैं? मरबी साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरबी साहब मैंने ना 2 सवाल, एक ही सवाल लेकर उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन मैंने 2 सवाल जो है ना कुरान के ऊपर ही है ना, तो वो मिर्जा साहब के हवाले से है ना हदीस के हवाले से है, दोनों ही कुरान के ऊपर है। तो मैंने मिर्जा साहब का लिटरेचर के अंदर पढ़ा, बेसत सानी का कीता मिर्जा साहब की किताबों पे नहीं है, तो मैं कुरान पढ़ूंगा, लेकिन मैं मौलिक कुरान की बात करना कुछ बात आपने कहा मेरी किताबों पे नहीं है, हदीस पे नहीं है, तो फिर ये कहते हैं आसिफ भाई थोड़ी स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी इसमें? आसिफ भाई ये हो रही है। मैं कर लेता हूँ। हाँ वो तेज है काफी, थोड़ी स्लो कर। मैं 1.5 पे किया हुआ था ताकि क्योंकि 1.25 पे कर दें, उससे 1.25 पे कर दिया। ठीक है। हाँ तो बस आप देखें ये बात ने भी कहा कि मिर्जा साहब की किताबों पे नहीं है और हदीस पे नहीं है, पुरानी बात है, और साथ ही मिर्जा साहब की किताबों पे जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये बेसत सानी का अकीदा और जो मसीह मौत और महदी मौत का अकीदा यानी 3 का तस्लीस जो अहम किया है, ये किसी कुरान की आयत से साबित कर सकते हैं? हमारा तो कोई नहीं तस्लीस का 3 मसीह मौत, बेसत सानी, मसीह मौत, बेसत सानी और महदी मौत तीनों एक ही शख्स को मानते हैं ना आप? नहीं आप कुरान की एक आयत पेश करते हैं। मैं आपके लिए पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, नबी है, खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, बशीर है, नज़ीर है, तो एक ही बंदे को मानते हैं ना सारा कुछ। तो वो 3 मान के बजाय तो 99 इन वन हो गया, तो क्योंकि 99 नाम है तो फिर आप क्या, तो हमें तो आपके तस्लीस का रखोगे, आप 99 इन वन मानते कि नहीं मानते? जी मैं बताता हूँ। हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने जो हमें बताया कि हम ये मानते हैं, तो वो उनकी सिफात है, ठीक है। तो ये भी जो मैं मिर्जा साहब की बारे में जो सवाल मेरा सवाल को क्लियर नहीं हुआ। आपने जो जवाब दिया था ना, आपने जो अपनी तोजी पे की है ना, उसी के बारे में बात करो कि आपकी सिफात है। सब मुतकल्लम अपनी बात की खुद करता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो फिर आप मिर्जा साहब की बातों को मतलब आप उनकी बात को कोट नहीं कर रहा। नहीं मैं तो ये बात कर रहा था कि
जो लोग को इतराज करते हैं वो ये सोने का बनाते हैं ना, सबसे पहले अपनी बात को मजाक करते हैं। ये काम माजरत मैं आपके साथ वो क्या कहते हैं आपकी बात को नहीं चाहता, लेकिन मैं इस रसूल को बुलाता हूँ। लेकिन इसके ऊपर अगर बात करूँगा वो बात लंबी हो जाएगी। ये जो बात थी बेइज्जती सानी, आप लोगों का ये जो है कि एक ही शख्स के बारे में जो कुरान में मजीद के मुताबिक कहते हैं कि एक शख्स ने आना था और उसी को वही शख्स होगा, तीन चीजें उसके अंदर होगी, बेइज्जती सानी भी होगा और मसीह मौत भी होगा और महदी मौत भी होगा। ये तीनों चीजें आने वाले शख्स के बारे में कुरान मजीद की एक आयत से पेश करते हैं। मैं तो आपके ऊपर बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बेशुमार से बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक आयत तो नहीं है ना, तो बहुत सी आयतें हैं। तो फिर हम एक आयत बता दें, सिर्फ एक आयत बताएं। जैसे बाद लोग इतराज करते हैं जो अहले कुरान है या दूसरे, वो कहते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ सकता हूँ, तो बेचेगा भी नहीं है ना। इसलिए ये मुताबिक करता है कि एक आयत से बताएं कि एक आयत के अंदर ये तीनों बातें लिखी हुई। ठीक है, आप ऐसा करें, आपको मुख्तलिफ आयात से उस एक आने वाले शख्स के बारे में ये तीनों चीजें जो है हम पढ़ सकता है। अभी मैंने आपको कहा कि एक ही आयत के अंदर तो बात हो सकती है, वरना आप एक आयत से नबी जितने भी आयात पढ़ लें और इस एक आने वाले शख्स के बारे में ये तीनों चीजें जो हम मुझे बता दें। मैं आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा आ सकता है लेकिन ये बंदा नहीं है, ठीक है ना? मैंने ये पूछा है कि आपने मैंने इस चीज के ऊपर ये कर लिया कि ये सिफात है, ठीक है। अब आपने कहा कि ये जो आपका मुतालबा है ये एक आयत से नहीं हो सकता क्योंकि आपके 99 जो सिफात है वो एक आयत से नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं फोन करता हूँ। अब आप मुझे मुख्तलिफ आयात कुरान मजीद की सूरह में से दिखा दें जिनके अंदर ये चीज निकलती होकर जो आने वाला एक शख्स है वही मसीह मौत होगा, वही बेइज्जती सानी होगा, वही महदी मौत होगा। ये मुझे कुरान की एक आयत पेश कर दें। बात यह है कि हमारा ये अकीदा है और कुरान की दूसरी भी बात साबित है कि जब कोई शख्स आता है और वो खुदा की तरफ से होता है तो फिर वो जो कहता है वो दुरुस्त है, जो दावे करता है ना वो अल्लाह ताला से इल्म पागल करता है बस। इसलिए ये कहना कि जी ये काम नहीं है, आप देखिए बात मोटी हो गया मैं अभी आपको बात बताता हूँ ना कि जो मिसाल है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे और कपड़े के ताजर थे, अक्सर बाहर जाया करते थे। एक दफा वो जब वापस आए हैं तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने कहा कि वो उसके ऊपर आसमान से वही नाज़िल होती है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। फिर जब दोबारा आपको मिराज हुई तो फिर लोगों ने कहा कि जी वो पहले वो कहता था कि आसमान से वही आती है, वो कहता है मैं खुद आसमान पे उठा। तो उन्होंने कहा अगर वो कहता है ना तो बिल्कुल ठीक है, सच बोलता है, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए जब बुनियादी बात ये होती है कि एक शख्स अल्लाह ताला की तरफ से इल्म पाकर वही पाकर ये कहता है कि मैं खुदा का नबी हूँ, खुदा का रसूल हूँ और कुरान करीम के जो म्यार बताए कुरान ने किसी सच्चे मुद्दई के वो उसमें पूरे हो जाए तो उसके बाद फिर उसकी सारी बातें मानी जाती हैं और ये नहीं कहा जाता कि ये दिखाओ वो दिखाओ, यहाँ से दिखाओ वहाँ से दिखाओ। उसने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि एक दफा हमने उसको कुरान के म्यार के मुताबिक सच्चा मान लिया। लेकिन आप तो ना तो कुरान को मानते हैं, ना आप कुरान के म्यार को मानते हैं, ना आप किसी आपका जो ना सारे का सारा जो फोकस है, जो टारगेट है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आपको इल्म नहीं है, शुक्र है मैंने इनका इल्म नहीं कहा। इसलिए वो आयत आपकी तरफ दोबारा मैं बताता हूँ कि खुदा तक वो नहीं साला कर रही है। अच्छा मौलवी साहब चलिए ठीक है, आपने मुझे आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि जब कोई एक मुल्ज़िम जो है वो अपने बारे में कोई दावा कर दे तो उससे वाला वही आपकी बात वीडियो के अंदर जो आपने लेक्चर किया था यही समझते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा मौलवी साहब ये दूसरा जो था वो मेरा ये था कि बार बार जो हमारे दोस्त भाई आ रहे थे उनसे सवाल कर रहे थे कि पहले आप ये तस्लीम करें कि कोई नबी आ सकता है या नहीं, नबूवत जारी है। ये नहीं कहा तस्लीम करें, मैंने ये कहा कि पहले उसके ऊपर गुफ्तगू करें। जी गुफ्तगू करें। अच्छा मौलवी साहब मुझे सिर्फ ना कुरान मजीद की एक आयत चाहिए क्योंकि मैं अब फिर आप मुझे कह देंगे कि सिर्फ एक आयत ही क्यों मांग रहे हो। चलिए मैं ये कह देता हूँ कुरान से मुझे ये साबित कर दीजिएगा कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है जमात अहमदिया के बारे में, उसके अंदर से मुझे ये मिला है कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो आखिरी सबसे आखिरी पैगंबर और मुसलमान अल्लाह जो थे वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब थे। एक कुरान की आयत पेश करते हैं जिससे यह साबित हो कि नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म नहीं हुई बल्कि मिर्जा साहब पे खत्म हुई है। जी पहली बात तो ये कि हमारा ये अकीदा नहीं है कि आखिरी मुर्सद जो है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, ये आप यहाँ पर इल्जाम लगा दिया। ठीक है जी तज़किरातुल शहादतैन 20वीं जिल्द रवानी क़ज़ानी की पेज नंबर 35 है और ये क्या हुआ है? नहीं किसी ने उतारा तो आज जी उतारा तो नहीं ख्याल है। ये नवीद भाई कुछ मॉडरेटर को गए कोई नहीं जरा ऊपर हाथ रख के ना बैठे रहे कि कोई बंदा रूहानी क़ज़ान का नाम ले तो छत से नीचे फेंक पे, ऐसा ना करें, बड़े प्यार से गुफ्तगू हो रही है। नबी साहब ये तज़किरातुल शहादतैन मिर्जा साहब की किताब 20वीं जिल्द के अंदर है रूहानी क़ज़ान में
उसका पेज नंबर 35 है, और इसी मजमून की जो दूसरी इबारत है वो पेज नंबर 69 और 70 के ऊपर है, जिसके अंदर वो खुद को उम्मत मोहम्मदिया का सबसे आखिरी कहते हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो मूसवी सिलसिला के सबसे आखिरी पैगंबर थे, इसी तरह मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब जो है सिलसिला मोहम्मदिया के सबसे आखिरी पैगंबर है। तो ये वहाँ पे इबारत लिखी हुई है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि ऐसा हमारा अकीदा नहीं, मैं तो मिर्जा साहब को जो पढ़ा है वही पढ़ के बता रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि आपका अगर आप सारा पढ़ते ना फिर आपको पता चलता कि उन्होंने यहाँ पे आखिरी किस मायने में कहा है और क्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, किस मायने में कहा नहीं है भैया, हमें तो क्लियर है। एक तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, शायद हो सकता है मुझे उनकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। इस पर हमें कौन सा बताया इन्होंने, पता नहीं, मैं अभी उनको ऊपर बुला के ना, तो ये अगर रवि साहब की इजाजत होगी तो लगा भी देंगे, उनको ऊपर करके तो लगा दो। आप दी किताबों का पता ही कुछ नहीं, वो पूछा सफर नंबर कौन सा बताया जी। मैं नवीर भाई तज़किरा शाहज़ान किताब का नाम है, 20वीं जिल्द के अंदर है, उसका पेज नंबर 35 है, और उसी तरह का मजमून जो है वो पेज नंबर 69 और 70 पे है। तो भी दिखा रहे हैं आप? देखिए बात ये है कि ये जो तरीक़ेकार है ना आप लोगों का, कि एक जुमला उठाया कहीं से और फिर उसका ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, और आप पूरा जो उनका लिटरेचर है, जो किताबें हैं सारी, उसमें तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि मेरे पास 10,000 मसीह औलाद हैं। सब माजरत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो 10,000 वाली मसील वाली बात है ये कब की है, और जो मेरे पास एक मसीह की भी जगह नहीं है वो कब की है? जब की हो वो, हम तो इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने आखिरी कहा है उसका मतलब ये है कि अब जो भी आएगा वो इनमें से होगा, और उन्होंने कई सबसे आखिरी का मतलब ये है कि अब जो सिलसिला शुरू हुआ है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ जो शुरू होगा सिलसिला, उसमें जो खुलफा आ रहे थे तो उन्होंने अपने आप को खातमुल खुलफा भी लिखा है, आखिरुल खुलफा भी लिखा है। उसका मतलब ये है कि खातमुल खुलफा के बारे में उन्होंने यही कहा, माजरत मैं बात करता हूँ कि खातमुल खुलफा के बारे में उन्होंने यही कहा कि ऐसा जो सबसे आखिरी आने वाला है। ये अच्छी बात है कि आप गाल के फिर बाद में माजरत कर लें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले बात कर लें। मैं माजरत कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ माजरत। तो हमारा अकीदा ये है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तमाम कुतुब और तमाम तहरीरात और तमाम फरमानात की रोशनी में कि आखिरी का उनका मतलब ये है कि अब जो भी होगा इसके अंदर ही होगा, इससे बाहर कोई नहीं होगा। वो बार बार इस बात को पेश कर चुके हैं कि आखिरी का क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा कोई लिस्ट करता हूँ कि जो आप बाकी आपके भाई करते हैं, आप भी काम कर रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर तो गुफ्तगू करने को हंसी तैयार नहीं है। आपने कम हो गई है बहुत ज्यादा। मुझे माफ कर फिनिश कर देते भाई। अभी ये माजरत करके गए थे, अभी अपनी आदत से बात नहीं आ सकते हैं, आदत पड़ गई है इनको बोलने के बीच में। नहीं इजाजत तो है, लेकिन आप बीच में बोल पड़ेंगे, मैं क्या करूँ? अच्छा साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल होगी तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है आपको? जी 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 जरूर। ये कहते हैं कि जो बयान करने वाला बात है ना, उसकी बात जो वो वजात करे वो काबिल कबूल होगी। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास हकीकत वही सवा नंबर 29, इसमें मैं पढ़ने लगा हूँ, सुने जरा। फरमाते हैं अब ईसाई कौम 2 गुना बदकिस्मती में मुबतला है। एक तो उनको खुदा ताला की तरफ से बजरिया वही और इल्हाम मदद नहीं मिल सकती क्योंकि इल्हाम पर जो मोहर लग गई, और दूसरी ये कि अपने उम्र पर आगे कदम नहीं बढ़ा सकती क्योंकि कुफारा ने मुजाहिदात और सही कोशिश से रोक दिया। मगर जिस कामल इंसान पर कुरान शरीफ नाज़िल हुआ उसकी नजर महदूद न थी और उसकी आम गमखारी और हमदर्दी में कुछ कसूर न था, बल्कि क्या बातबार ज़मान और क्या बातबार मकान उसके नफ्स के अंदर कामल हमदर्दी मौजूद थी। इसलिए कुदरत की तजल्लियात का पूरा और कामल हिसाब उसको मिला और वो खातमुल अंबिया बने। मगर इन मानों से नहीं कि आइंदा उससे कोई रूहानी फैज़ नहीं मिलेगा, बल्कि इन मानों से कि वो साहब खातम है, बजुज़ उसकी मोहर के कोई फैज़ किसी को नहीं पहुंच सकता और उसकी उम्मत के लिए क़यामत तक मुकालमा और मुहातबा इलाहियत का दरवाज़ा कभी बंद ना होगा और बजुज़ उसके कोई नबी साहब खातम नहीं। एक वही है जिसकी मोहर से ऐसी नबूवत भी मिल सकती है जिसके लिए उम्मती होना लाज़मी है और उसकी हमदर्दी और उसकी हिम्मत और हमदर्दी ने उम्मत को नाकिस हालत पर नहीं छोड़ना चाहा और उन पर वही का दरवाज़ा जो हसूल मार्फत के सजान है बंद रहना गवारा नहीं किया। हाँ, अपनी खत्म रिसालत का निशान कायम रखने के लिए चाहा कि फैज़ वही आपकी पैरवी के वसीला से मिले और जो शख्स उम्मती ना हो उस पर वही इलाही का दरवाजा बंद हो। सो खुदा ने इन मानों से आपको खातम नबिया ठहराया, लिहाजा क़यामत तक ये बात कायम हुई कि जो शख्स सच्ची पैरवी से अपना उम्मती होना साबित ना करे और आपकी मुताबिक में अपना तमाम बाहम ना करे, ऐसा इंसान क़यामत तक ना कोई कामयाबी नहीं पा सकता है और ना कामयाब हो सकता है, क्योंकि मुस्तकिल नबूत खत्म हो गई। मगर ज़िंदी नबूवत जिसके माने हैं कि महज फैज़ मोहम्मदी से वही पाना वो क़यामत तक बाकी रहेगी। दोबारा पढ़ता हूँ, मगर ज़िली नबूवत जिसके माने ये है कि महज फैज़ मोहम्मदी से वही पाना वो क़यामत तक बाकी रहेगी ता इंसानों की तकमील का दरवाज़ा
बंद ना हो, और ताकि क्या है कि मुकदमात और मुहासबात इलाहिया के दरवाजे खुले रहें और मार्फत इलाही आराम है कुछ इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा। जी जी, मैंने आपको पूछा कि जब अब आराम है आपको। देखिए रबी साहब, देखिए ऐसे तो ना करें, अब तो मजाक तो ना करें ऐसा। तो मजाक की क्या बात है? मैंने देखिए आप काबिल एहतराम है, अब मैं ऐसी बात करके और बैठा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप तो काबिल एहतराम है ना। चलिए ठीक। अच्छा, मैं रबी साहब जो इन्होंने अभी हवाला पढ़ा है, अब ये जो बात इन्होंने की है ये मुझे समझाई है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने, ठीक है, और यही बात मुझे समझाई है मिर्जा बशीर अहमद साहब ने, दोनों ने। एक तो आपके खलीफा रोम है और दूसरे आपके कमरुल अंबिया है। उन्होंने मुझे ये बात समझाई है कि ये जो कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे नबी आ जाएंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करता है। तो अगर ये बात जो भाई साहब पीस भाई ने जब इक्तबास पढ़ा है, अगर इसकी यही अंडरस्टैंडिंग होती जो ये मुझे बता रहे हैं, तो मिर्जा बशीर अहमद साहब इसके बरखलाफ जब ये ना कहते मुझे कि भाई साहब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे नबी आ जाएंगे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करते हैं और उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रुतबा है, जो दर्जा है, वो कम हो जाता है। ये बात लिखी हुई है। अब जो तशखीसुल इज़हान है, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की जो सदारत जो है वो निकलता था, उसके अंदर एक मजमून निकलता है जिसके अंदर आपको रोकना पड़ेगा। पिछली दफा आपने ऐसे किया था। बात यह है कि आपने बड़ी ही सफाई के साथ कुरान करीम से रखे हैं आप, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने कुरान करीम को ले नाइट्रेटर भाई, इसके बाद फिर उतार दिया गया। साहब का मुतालबा शुरू से ये है कि कुरान करीम से बात करें, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप कुरान करीम से हटकर उन्हें साहब की किताबों पर जाने के लिए। ये कहता हूँ कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि इतना मौका आपको कैसे दे दिया बात करने का। बड़ी बात है जी जी करने की वजह से जी, बात जी करना पड़ता है। मजे की बात है भाई, इनसे सीखे, इनसे सीखे आप। डिबेटर हैं सर, बहुत पुराना तजर्बा है सर। हम तो जाके कहते हैं हाँ जी आ जाओ, केड़ा आगे लगता है वो कहते ललकारना नहीं था ना, ललकारना नहीं था, आपने ना पुचकार पुचकार के चुपड़े मार। मैंने आपके सामने ललकारा क्या था जब वो फिरका मैं कहा फिर आज सारे ऊपर बैठा, जो मर्जी मुनाज़रा कर ले मेरे साथ, डिबेट कर ले, जो मर्जी जो ऊपर बैठा है कर ले मेरे साथ, लेकिन फिर फिरका सारे तक खुलेगा। हाँ, कल भी आपने बोल दिया था कि मैं तो लफ्ज़ पकड़ूंगा, तो बस फिर नहीं, वो तो इन्होंने गलती की है ना, गलत बोल। नाइट्रेटर भाई, ये तस्लीसे अहमदिया का मैंने क्या पूछा था, ये समझ आया आपको? बड़ी जबरदस्त बात की, मैं समझ गया जब आपने हवाला दिया, मैं समझ गया वाकई तस्लीस है इनका अकीदा, तस्लीस का है। इसके ऊपर उसको बजाय या मसीह मौद महदी मौद, ये तस्लीस है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। तो इसके ऊपर जी करें, सॉरी नहीं आप करें, इसके ऊपर नाइट्रेटर भाई देखें, जब हर बात क्लियर हो गई, इसने मुझे कुरान मजीद, मैंने इसको जब ये भी कह दिया कि चलो एक आयत नहीं पूरे कुरान मजीद की आयत से मुझे ये तस्लीसे अहमदिया साबित कर दो, इसके ऊपर बजाय कुरान की आयत पेश करने के कहना कि नहीं जो नबी आता है वो जो कहे वही मान ले, तो बस जो कह दिया ठीक है। भाई कुरान किधर गया आप? डॉक्टर भी वमा अना अलैहि व असहाबी, ये वाला नहीं इधर एडजस्ट हो रहा था, जगह कम थी। तो आज तो बंग भाई, आज तो जितने माशाल्लाह हमारे दोस्त गए ना, हर बंदा ही जो है ना वो ऐसी चीज निकलवा लाया मुंह से कि यकीन करें कि ये अंसर रजा साहब जो है ना, ये मुझे लग रहा है हमारी तरफ से खेल रहे हैं भाई, ये पता करो। वैसे डबल स्पाई तो नहीं, वो क्या कहते हैं, डबल एजेंट, डबल एजेंट लग रहा है मुझे। हाँ। अच्छा नाइट्रेटर भी, वैसे अगर मैं अपने कम इल्म के हिसाब से अगर मैं मैन ऑफ द मैच आज दूं ना, तो वो इब्ने आदम भाई है। बिल्कुल कमाल है। इन्होंने जाते ही, वो मुझे याद है जुम्मे का दिन था, जुम्मा पढ़ने जा रहे थे और अफरीदी बैटिंग कर रहा था, और हमें ये टेंशन थी जुम्मा ना निकल जाए, और अब ये भी टेंशन थी कि इधर अफरीदी की बैटिंग भी देखने, वो 33 बॉलों पे जो उसने 100 बनाया था, वो वाला सीन मुझे लग रहा था कि इब्ने आदम भाई बैटिंग कर रहे हैं, दिला। अच्छा, और उससे ना उगलवाई जा रहे हैं, और उसको छोड़ मतलब वो कहते हैं ना मार के पीछे, हम यहाँ पे कह रहे हैं यार इब्ने आदम भाई को यहाँ से पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी हिकमत अमली अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि ये सिर्फ उससे अगर ये पकड़ लेते उन्होंने अगली बात नहीं करने देनी थी, है ना डॉक्टर डुबई? जिस पे हम कह रहे थे कि इस बात को इनको इब्ने आदम भाई को पकड़ना चाहिए था,
इन्होंने छोड़ दिया इसको ऐसे ही। लेकिन उसका हिकमत अमली अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि अगर ये उसे उधर ही पकड़ ले तो उन्होंने उधर ही उतार देना था। उसके बाद जो वो मुनकर हदीस हुआ है और पता नहीं किन किन चीज़ों का उसने इनकार किया है, ये वाले उसके अकायद भी बाहर आने। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है भाई? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इनकी मौत हो गई है। जमात अहमदिया को ना आप अपने कफन दफन की तैयारी कर लेनी चाहिए, या कम से कम वो जो बात है ना साहिर भाई, आपको याद है वो आप ये मिर्ज़ा बशीर अहमद बशीरुद्दीन ने क्या कहा था कि जी जैसा होगा कर लेंगे, तबलीग कैसे करोगे, जैसे होगा कर लेंगे। तो ये हाल हो गया। ये हो गया जी। वाकई टक्कर मारी सीधी आकर उन्होंने अंसर रजा साहब, अंसर रजा। इसको देखकर तो मेरे भी हाथों में खारिश हो रही है। मैं कभी नहीं गया किसी कादियानी से बात करने, आज तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी जाऊं। रोजा तोड़ गया हुआ जिस पे। साहिल भाई, साहिल भाई वो क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें एक खिलाड़ी होता है ना जिसको कहते हैं ओ इनू ना आउट करियो, पता है? ये अपने वालों खेल रहे हैं, इनू ना आउट करियो। एक सवाल है भाइयों से, ये जो इम्तियाज भाई लाइव पे बैठे हुए थे, ये रिकॉर्डिंग आप में से किसी के पास पूरी रिकॉर्डिंग है या नहीं है? ये डॉक्टर डूब भाई की इसकी रिकॉर्डिंग इधर से निकलेंगे क्लिप, बाकी अगर कोई भाई आके बता दे तो किसी ने की हो तो, वरना इधर से निकलेंगे। सही है, सही है। जब ये ब्रॉड बंद ये ठीक है। हैदर भाई कह रहे हैं कि है नीचे हैदर भाई कह रहे हैं उनके पास। ठीक है, ठीक है। हैदर भाई ये आपने किसी तरह से भेजें साहिल भाई को, ये इम्तियाज हैदर भाई को ले लेते हैं। इम्तियाज भाई मुझसे कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो है ना मुझे भिजवा दें, ठीक है ना? हैदर भाई ऊपर आना चाह रहे हैं, मुझे कहा कि नीचे आओ, मैंने ऊपर आना है तो मैं नीचे जाता हूँ तो उनको लेते हैं ऊपर। मैं ठीक जुम्मे की तैयारी करूँगा। मैं सुन रहा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बगैर नाम लिए तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आ जाए हैदर भाई, आ जाए आप ऊपर आ जाए। हैदर भाई आप ये भेज देंगे ना तो मैं फिर ये इम्तियाज भाई को भेज दूंगा, या अगर आप इम्तियाज भाई को डायरेक्ट भेज भाई अस्सलाम वालेकुम। माइक म्यूट कर। वालेकुम सलाम लेते हैं तुमसे, वालेकुम सलाम लेते हैं। चुप करके अभी बैठ सुकून से, अभी बात पता ना चल रही भाई, बात कर रहे हैं बड़े भाई, बात कर रहे हैं। चुप चुप, बात नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ बात नहीं करनी, फिर चुप 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 कर। तेरी औकात है तो यहाँ आ गया मैं बिठाए, चल चुप कर। चुप, ये औकात है तो चल। मजा आया कि नहीं शेख आदि? वैसे आज तेरी ये औकात है। ठीक है भाई, मैं हैदर भाई शेयर करता हूँ। नहीं, ये कौन से मुसलमान हो तुम लोग, मुझे ये बताओ पहले। ये चुप करके बैठ पहले, आवाज ना आए तेरी। 5 मिनट आवाज ना आए फिर तेरे को जवाब देगा। मैं कहता हूँ तेरी 5 मिनट आवाज ना आए, मैं कहता हूँ तेरी 5 मिनट आवाज ना आए। वो मुरब्बी साहब की औकात नहीं दिखा रहे, मुरब्बी साहब की औकात, अपने मुरब्बी साहब की औकात नहीं दिखा रहे। हाँ, वहाँ जो हर बंदा उठा उठा के नीचे गिराता है वो इस्लाम है, जो बात करने जाता है उसको बेइज्जत करते हैं वो इस्लाम है। नबी की तालीम पेश करें, इनके नबी की तालीम। तेरी औकात है तो तेरी ये औकात ही नहीं है बेटा तू यहाँ पे बैठ के बात करे। तू बस नीचे बैठ के जूतों में ना टैप टैप किया कर, ठीक है? बड़े बेशर्म हो। चल नीचे बैठ। लेते हैं 5 मिनट बाद तुम्हें फिर लेते हैं, सब्र कर, जरा वेट कर। जी हैदर भाई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, आपके पास हराइजन वॉर्न वाली भी रिकॉर्डिंग है या नहीं है? क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। वो आज वाली है भला? हाँ हाँ, आज ही वाली है। आज अराइज जो है भाई है ना हाँ मेरे हमारे, पास हो गया, क्योंकि मैंने तकरीबन सारे रिकॉर्ड किए हैं। मैं चेक करता हूँ आज वाली जितनी भी थी ना, सारे वो सारी मैंने हाँ हाँ, रिकॉर्ड की थी। खास तौर पे उसमें वो जो अंसर रजा का वो है ना डायलॉग, इन्हें नीचे फेंकें। यार ये इन्हें नीचे फेंकें जो है ना, ये जो है ना मीम बनना चाहिए। मैंने असल में ना ये सुनी जैसे नहीं है पूरी, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग पे लगा के ना मोबाइल छोड़ गया था, तो मैं हाँ देखता हाँ हूँ हाँ, कि उसके अंदर कौन कौन सी रिकॉर्डिंग्स हैं। बाकी इम्तियाज़ भाई वाले तो मैंने खुद रिकॉर्ड किया ना, तो मेरा वो तो श्योर है मेरे पास है। राज भाई का मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप पे कि अगर किसी भाई के पास रिकॉर्डिंग है तो वो मुझे भिजवा दें। ठीक है, चलिए देख लें आप, मुझे नंबर शेयर कर दीजिएगा या अपना कर दीजिएगा या इम्तियाज़ भाई का कर दीजिएगा, तो मैं सेंड कर देता हूँ फिर। नंबर भेज देता हूँ। ओके। सखी भाई कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम मिल गए। अच्छा नहीं, ठीक हो गया। इब्ने आदम तो भाई आप यहाँ पे उन्होंने है मौजूद है? इब्ने आदम भाई बैग में गए हुए हैं। ओके। शेख आदि ऊपर आओ जरा। शेख आदि ऊपर आओ, बताऊं तुम्हें मैं। ये दावा है कि हम नबी। फिर नीचे नीचे क्यों जा रहे हो शेख आदि? क्या हो गया? नीचे गिर जाता है यार ये बार बार। अब कोई बंदा नीचे ना उतारे इसको। ऊपर आओ शेख आदि। मुझे फेंक रहे हो तुम लोग। वो यार ये कौन बंदा फेंक रहा है इसको? इसको कोई बंदा फेंके नहीं अभी। ऊपर आओ शेख आदि। अच्छा ये कौन से नबी ने तुम यार ये देखो, कम से कम तू खुद ही शर्म कर ले शेख आदि। तू ही ना ऊपर आ। तुझे पता जो तेरी तेरी फिर ऊपर आ जाता। देख काम देख क्या कर रहा है शेख आदि तू। अभी कोई बंदा नीचे ना गिराए यार इसको। लास्ट टाइम कह रहा हूँ इसके बाद। सर अंसर रजा साहब कहते हैं इन्हें नीचे फेंके। ओ फिर नीचे फेंक दिया यार। ये कौन बंदा कर रहा है? क्यों कर रहे हो यार इस तरह? वो इतना मतलब गली का लौंडा है जो अच्छा यार कोई रिमूव ना करे जी। आ जाए जी शेख आदि साहब, आ जाए। कोई रिमूव ना करे। हाँ कोई ना करे जी, सिर्फ मैं। अच्छा ये कौन से नबी ने तुम्हें तालीम? मेरी बारी है, मैं करूंगा, कोई ना करे यार। ये बंदा बता मॉडरेटर हटा दो यार, सारे मॉडरेटर हटा दो। मुझे तो कर देंगे ना यार। मुझे 10 पूरी करने दें फिर आपकी बारी। आ जाए। ठीक है, आए जी शेख आदि साहब। ये कौन से यार ये यार मॉडरेटर हटा दो यार, सारे मॉडरेटर हटा। यार मेरे नालों भी तेज ने मॉडरेटर। मेरे नालों भी तेज ने। हाले मैं डिस्कनेक्ट ते उंगली रखी सी, पहले ही यार ये वैसे इसको भी शर्म नहीं आ रही कि मेरी इतनी कुत्ते वाली हो रही है, मैं यहाँ से चला जाऊं। चला शेख आदि लास्ट टाइम कोई बंदा भाई इसको ना रिमूव ना करे। आजा शेख आदि ऊपर। चले मेरी पूरी हो गई अब यार कोई ना करे यार। हाँ आओ शेख आदि ऊपर आओ। गुद्दी ऊपर आ जरा। गुद्दी बेटा ऊपर आओ। शेख आदि ऊपर आओ बच्चे। हुन नहीं आना, हुन थोड़ी जी शर्म आई। थोड़ी जो कह रहा था ये हुन नहीं आएगा। वो कह रहा था आई तो सी ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਈ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। शेख आदि वैसे हम किसी के साथ ऐसा करते नहीं होते, लेकिन तुम्हारी औकात ये थी इसलिए तुम्हारे साथ ये किया गया है। तो मेरा भाई थोड़ा सा महसूस करके ना खुद ही पानी में ना हल्का सा मुंह डालो और बस ठीक है। हाँ पानी जरूर गंदा करना है यार। देखिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी हथेली में थूके और फिर उसी में डूब जाए। अच्छा ये समझ रहा था कि मैं शायद बड़ा कोई वैल्यू रखता हूँ, इंपॉर्टेंस रखता हूँ, मुझे ऊपर उठा के मुझे बात करना। भाई तेरी औकात है यहाँ पे बैठ के बात करने के लिए? अहम लोग बैठे हुए, तू कौन है? हाँ
بیٹا ہے نا, تو آج یہ ریکارڈنگ جو آج تمہارے ساتھ ہوا نا, یہ کر کے نا نیچے تم نے اپنے پروفائل پہ لگانی ہے. ہاں بول یار یہ کون بندہ ہے ماڈریٹر یار میں ہوں تے ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ. ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰੀ. यार अब कोई ना उतारे, मैं शेख हादी साहब को इनवाइट कर रहा हूँ. सीरियस गुफ्तगू करनी है, सीरियस गुफ्तगू. हाँ चलें साहिल भाई आप कर आ जाएं जी शेख हादी साहब, हम गुफ्तगू करें आप साहिल भाई से. बस हो, कोई बात नहीं. वो चला ही गया डर. वो गुस्सा खा गया हूँ. एडी देर वाला गुस्सा गैरत खा गया. गैरत एडी देर जल्दी नहीं खा ली गैरत, मेरे ख्याल में बड़ी स्पीड बहुत जल्दी खा दी, बहुत जल्दी गैरत खा दी है. नहीं हो ना कोई बंदा यार, कोई थोड़ा सा इल्म वाला बंदा नहीं हो. जी इल्म वाला बंदा मैं उठाने लगा हूँ. अच्छी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आपकी बात करा देते हैं जी. आए जी. वो कितने गए ने, एक मिनट ठहर जाओ, आ जाओ इरफान साहब आ जाओ यार, थानू रिक्वेस्ट भाई. ये बात अच्छी करते हैं लेकिन ये सिर्फ एक चीज ये कहते हैं जो गुस्सा चढ़े तो गाना भी कर दे, ये भी याद रखियो. ਤੁਸੀਂ मतलब पहले ही डरा दे उत्ते ही ना आना. इरफान साहब उत्ते आ जाओ, थानू रिक्वेस्ट पाई. शेख हादी आ गया यार फिर. ले जी शेख हादी साहब, अब आपने सीरियस गुफ्तगू करनी है यार, कोई ना उतारे. अगर आप आगे ऊपर फिर बोलेंगे तो फिर हमें मजबूरन उतारना पड़ेगा. पहले हमारी सुन लें तो फिर आपको पिक करेंगे. आ जाए जी. और फिर चला गया. ऐसे सुन के चला जाता कि जी उतर ठान लगे. नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग करने आ रहा, पता नहीं आपको. पहले उसको पता नहीं था रिकॉर्डिंग का, भी रिकॉर्डिंग करने के लिए आया है. हाँ नहीं वैसे जो कोई भी आए ना, सबसे पहले सवाल ये पूछना है कि भाईजान आपने अपना मिशनरी इंचार्ज ला के बैठाया हुआ यहाँ टिकटॉक पे, वो आके खुलेआम कह रहा है मुनकर हदीसों में, तो क्या ये जमात अहमदिया का कीदा है या वो अकेले आदमी का कीदा है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा भाई. या अच्छा जी. इसका मतलब मरबी साहब जो हैं वो भाग गए. अच्छा यार एक बंदा मैं उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो ऊपर आ जाए करेंगे बात साहिल भाई. हाँ वो बंदा ये कहता है कि मैंने कन्वर्ट हुआ हूँ मैं. हेलो एक मिनट ठहर जाओ. हाँ जी वो बंदा कहता है मैंने ना कोई तकरीबन 6 महीने पहले अहमदियत कबूल की है. नहीं नहीं अच्छा फिर चुको. इसका नाम है जी HS. ओए गप्पस्तान जे बड़ा बड़ा. नहीं नहीं लो जी मेरे नाल शर्त ला लो जी उत्ते आ जाए. यार रिसर्च करके गए ने जनाब. ओ नहीं नहीं ये डरपोक के बहुत, ये नहीं आंदा, ये कभी भी नहीं आया ऊपर. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰੋ. रिसर्च कमेंट च रिसर्च हो रही है थले. हाँ जी HS साहब आ जाए यार, अच्छी गुफ्तगू होगी. ऊपर आए आप, रिक्वेस्ट डाली हुई है आपको. गुफ्तगू नहीं भी करनी तो ऊपर तो आए ना, स्टोरी बता दें अपनी. क्योंकि मरबी साहब नहीं कर सके तो हम आपसे क्या तवक्को करें, क्योंकि मरबी साहब नहीं आपके कर सके. ये वो बात होगी कि जो मिर्जा बशीर अहमद है, मैं नहीं कहता कि मिर्जा साहब ने वहाँ पे जो बात लिखी है कि सारे मौलवी इश्तिहार दें मेरे मुखालिफ फिर ऐसा करें, तो कहता मैं ये तहरीर पढ़ के बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था. तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये रिसर्च करके गया है और ऊपर नहीं आएगा, तो मैं बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ इस बात से कि ये ऊपर आएगा. हाँ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ. भाई कहते हैं ऊपर आने से डर नहीं लगता साहब, यार ये हर किसी के लिए नहीं था, ये वो जिसको किया है ना उसकी औकात ये थी कि उसको इसी की तरह रखा जाए.
یہ کوئی اسنین صاحب آئے ہیں یہ ساحل بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی سر جی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر الحمد للہ. اور سر جی یہ ہے ہی لوگ جھوٹے آ ہاں جی ایک نمبر سے جھوٹے قادیانی لوگ آ. بس گال نہ کڈیو باقی گال نہیں کٹ رہی بس باقی ٹھیک ہے بھੈਣਾਂ بھی بیٹھیاں نے ٹھیک ہے تو گال نہیں کٹ ٹھیک ہے میرا ذہن نہیں دیا گھوم گیا سی. چلو ٹھیک ہے جداں تسی سر کہندے جو. ہاں مہربانی شکریہ شکریہ. جی جڑا نا یہ لوگ ہے ہی اداں دے آ. انہاں دا کوئی دین ہی نہ کوئی مذہب آ. جی جی یہ تے انگریزاں نے یہودیاں نے پیدا کیتا ہوا مذہب ہے انہاں دا. بس وہی ہے انہاں دا مذہب. جی بہت شکریہ. جڑی سپیڈ تو سب پڑھی سانو اپنا ڈر پی گیا. عرفان بھائی آؤ یار اوپر. ہاں عرفان بھائی تو میرے وہ یہ تو پکے بھائی ہیں پکے والے بھائی ہیں. عرفان بھائی مجھے یاد آ گیا. عرفان بھائی آ جاؤ اوپر. عرفان بھائی دی سٹوری دا پتا جی؟ نہیں سناؤ. چنگے بھلے ساڈی لائف تے آندے تے بھائی تے السلام علیکم کرتے ہیں. ایک دن ایسا مرزا صاحب اتنے ہسنا رہتی السلام علیکم نہیں کہنے کہتے تسی کون مک گیا بھائی ادھر دا. مک گیا. عرفان بھائی ہوں اسی بھائی نہیں اگوں جواب ہی نہ دین. کہ اگر اس معاملے میں جو منصر رضا صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ ہفتہ بھی ہور کٹ جانا تو میں کہنا کہ بڑی گل ہے. ہفتہ کٹ گیا تو پھر جماعت نہیں کٹے گی. ہفتہ نہیں کٹے گی بھائی. وہ وقت اس وقت میں دیر نہیں جب انصر رضا صاحب نے نیچے آ کے آپ کو ریکویسٹ ڈالی مجھے اوپر کال پہ اٹھاؤ. یہ ویسے فیصلہ انصر رضا صاحب کا نا بڑا غلط ثابت ہو رہا ہے. اس بندے کی رسپیکٹ لگ گئی ہے داؤ پہ. اب اگر نہیں پیچھے ہٹے گا نا تو وہ اسی وجہ سے کہ یار ہن میں قدم تے چک لیا ہن میں پیچھے کس طرح ہٹا. یا تو پھر آفیشلی انہوں نے کہا جائے بھاجی بس کرو تہاڈی مہربانی تسی سانوں ڈبل ایجنٹ لگدے ہو. نائٹ رائڈر بھائی آپ نے وہ سنا ہے عامر حق نے کیا کہا وہاں پہ کہ جی آپ آئے ہیں بڑا اچھا ہوا. ہم تو ترس گئے تھے کوئی سمجھدار احمدی کوئی ملے جس سے آپ بات کریں. جماعت کے تربیت یافتہ لوگوں کی کمی ہے ٹک ٹاک. واہ 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 زبردست بات. ہاں تو میں آپ نے میری بات بھی سنی تھی. یہ تو عامر بھائی کا تو ماشاءاللہ نو میچ ٹو ہم. جب گیا نا تو اس سے پہلے یہ پتہ کیا جب آپ بھی اوپر تھے نا تو یہ آپ کو ہی میرا خیال کہہ رہا تھا کہ میں جب ریڈیو پر آنا شروع ہوا میں 5 سال سے پتہ نہیں کتنے سال سے ریڈیو کر رہا ہوں میں تو کرتا ہی قرآن پر بات ہوں اور لوگ تو اب مجھے کہتے ہیں آپ تو قرآن کے عالم ہو گئے ہیں اب آپ کو قرآن بہت سمجھ آتا ہے. تو پھر یہ آپ سے جو باتیں کر رہے تھے نا وہ بڑی عجیب. یہ تو جو قادیانی سارا دن اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے خلاف کر رہے ہیں. تو میں کہا یار پتہ نہیں اے قادیانی کہ وہ قادیانی ہے. مجھے یہ سوال اٹھا نا تو میں جب اوپر گیا نا میں نے کہا جی بڑی خوشی ہے آپ آئے ہیں اور آپ نے ابھی بتایا کہ جی کوئی آپ کے قرآن فہمی پر فخر کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن کی بڑا فہم ہے اور بڑی خوشی ہے. ایسے جو عالم مربی جو ہیں علم والے لوگ آنے چاہیے. اور کہتے میں اب پلان کیا میں اب روزانہ کی بنیاد پر آؤں گا. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا فیصلہ کر لیا آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب سے ابھی آپ کو سن رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ جو براڈوں پر قادیانیت کی جو آپ کی جماعت کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ تو بالکل غلط ہے. آپ صحیح تو آپ بتا رہے ہیں. بڑا کنٹراڈکشن ہے.
तो अच्छी बात है, आप आते रहा करें, चलो हमें भी आपके इल्म से कोई फायदा होगा, लेकिन यह है कि कम से कम आप जमात के अकीदे तो ठीक कराएं। ये भाई किसी ब्राड पर कोई अकीदा है, किसी ब्राड पर कोई अकीदा है, तो अब चलो कम से कम आप आए हैं तो ये अकीदे तो ठीक कराएं इन सब के। किसी ने कोई बात नहीं की। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी हम तो वैसे भी आपका बड़ा इंतजार करते रहे हैं, वो एक डिबेट आपकी सुनी थी शाह साहब के साथ, तो वो चौथी आपकी जो वो रहती थी उसकी टर्म, तो आप तशरीफ ही नहीं लाए। उस दिन से हम भी दाग लगा के बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब शाह साहब की आपकी डिबेट हो। तो कहता है वो ना मेरी जिंदगी की गलतियों में से एक गलती थी, तो आप दुआ करें मेरी गलती। मैंने कहा मैं तो उससे बड़ी आपने गलती की है जिंदगी में, सबसे बड़ी गलती जो आपने जिंदगी में की है, मैं तो उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसकी तस्वीर करा दे। अच्छा, तो साथ ही कहता है अहमदियत कबूल करने वाली है। मैंने कहा देखें ये होता है इल्मी आदमी से बात करने का फायदा कि उसको पता चल जाता है, फौरन समझ जाता है। आप समझ गए मेरे इशारे को कि मैं आपने कौन सी बड़ी जिंदगी की गलती की है। कमाल, ये तो आपने अच्छा देखिए, मैं ना आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैं ना गया ना तो मेरे बारे में खुद ही गवाही दे दीजिए। मैंने इनके साथ रेडियो अहमदिया के प्रोग्राम ये हमारे साथ ही किया करते थे, तो मैंने फिर शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा शुक्रिया अंसर साहब, मैं तो लोगों को यहाँ बताता हूँ तो वो कहते हैं जी नहीं झूठ बोलता है, तो आपने इस बात की तस्दीक कर दी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। क्या करें, अभी भी ये शो डालते हैं, इनके पल्ले है कुछ नहीं। मुरब्बी आके हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह डिबेटर्स भी जो है ना उसका वही मैं फिर बार बार कहूंगा कि गली में किसी को बिठा दो कि आंधे आंधे इन्हू छितर मार के जाना है जिन्हें भी जाना। ये हाल हो रहा है यार, मैं तो हैरान हूँ। फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कि ऐसी केड़े पास से चले गए हैं। ये है ना कि वो अल्लाह ताला फिर जब ईमान अकीदा जब रसूलुल्लाह से गद्दारी होगी तो आपकी अकल भी छीनी जाएगी ना। ये दुनिया देख रही है लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है वो जो अल्लाह ताला कहता है ना, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, तो ये वो चीज़ है जो इनको नज़र ही नहीं आ रही। ये हाल है इनका। ये आज क्या हुआ है, आज वो आयत पढ़ रहा है तो मुझे कहता है कि आप कज बहस हैं, आप बातों को मोड़ते हैं, आपके दिलों में ज़ैग है, टेढ़पन है। फिर कुरान की आयत पढ़ दी, फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, वो वाली आयत पढ़ दी है। वो सारा मैंने कहा पढ़ते रहो। जब उस वक्त चुप को ना, मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये समझता हूँ कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून भी मैंने जोड़ दी। मैंने कहा आप लोगों को तो मैं ये जिस करता हूँ फिर तो एकदम कर लें आपकी मर्जी है। मैंने कहा जी ठीक है, मान लिया आपने, और क्या हो सकता है इसके सिवा। तो वो तंजिया गुफ्तगू कर रहे थे ना कि भाई मेरी बातों को आप मेरे अल्फाजों को पकड़ते हैं, तो भाई आप आए हैं मुरब्बी साहब, इतना तजर्बा लेकर आप फूंक कर सवाल यहाँ अल्फाज बोलें, आपको इतना नहीं पता कि मुखालफी होगी, और आपके मेरे अल्फाज पकड़ो ही ना तुम, वाह भी वाह। नहीं मैं 9 सारियां 5 सीधियां बोला भी वही मैं आउट करते जेडी बोल मैं आउट वो बोला। ये खेलने बड़ा छतरी है कि आप मुंह से और फिर उनका तर्जमा गलत करें और आप उसको पकड़ने कहते हैं कि आप दिल में कजी है, टेढ़पन है। वाह जी वाह, क्या उसूल है इनके। आपकी मौजूदगी मुझे याद आ गया, मैंने चीज़ पूछनी थी। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह बकरा की 137 आई थिंक, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रा मुझे थोड़ा सा उसको तो समझा दीजिए। सूरह बकरा आपकी सिग्नल वीक है नाइटर भाई। ठीक है मैं कह रहा हूँ आपको समझाना है। वाह नहीं, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे थोड़ा मेरे पॉइंट क्लियर करने हैं, मैंने इस वजह से आपसे कहा। अच्छा नहीं वो मैं माशाल्लाह आप अपनी जो है ना कसर नफ्सी का मुजाहरा ना करें। नहीं वो वल्लाही मैं सही करते हैं इंशाल्लाह। नहीं मैं माशाल्लाह 137 आपने कहा। जी 137। आप माशाल्लाह तजर्बाकार इल्मी शख्सियत है माशाल्लाह। 137 जी पढ़िए जी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay. Baby, I don't know, whatever you're gonna buy, show to your mom. If she says yes, then buy it. Okay, I'll talk to her. Go. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جی کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں. پوائنٹ ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح تم لے آئے ہو، یہ تم سے مخاطب کون ہے؟ اچھا پیچھے سے دیکھیں نا کہاں سے آ رہے ہیں. پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے چلتے ہیں. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ اور نصرانی ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر تو ملت ابراہیمی والے ہیں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے، یعنی وہ وکان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل ابراہیم وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے الصلوۃ والسلام. وما اوتیا موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتیا النبیون من ربہم، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. یہ وہی کی ہے نا ساری، وہی یا صحیفے یا شریعتیں. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں بھی جو ہے فرق نہیں ہے، کسی ایک میں بھی ان میں سے آپس میں کوئی فرق نہیں. ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے نا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اس کے مثل جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ، تو ان کی تو وہ صریح اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جی رائڈر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رائڈر بھائی میں پیغام لے کے آیا ہوں. جناب یہ آپ نے زیادتی نہیں کی ہوئی یار؟ کیا مطلب؟ یہ جو سامنے ڈسپلے پہ آپ نے لگایا ہوا سب کچھ. تم آپ یہ بات انصر رضا صاحب سے کہہ دیتے نا، وہ کہ منکر حدیث نہ ہونا بنے ہیں. وہ تو نے کہا نا کہ میں حدیث نہیں مانتا. نہیں تو یہ اس طرح کا ایکٹ ٹھیک ہے آپ کے مطابق؟ بھائی بات سنیں، ہم نے تو وہ کیا ہے. جی نائٹ رائڈر بھائی آپ کا نا سگنل کا مسئلہ ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. میں دیکھیں نوید بھائی کریں بات کریں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں نوید بھائی بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یا تو آپ کے ماڈریٹرز ختم ہو جائیں، آپ خود ماڈریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنے سارے ماڈریٹرز بٹھائے ہوئے ہیں، یہ زیادتی والی بات ہے. میں جب ریڈیو احمدیہ کیا کرتا تھا انصر رضا صاحب کے ساتھ، تو میں اکیلا ہوسٹ ہوتا تھا، اور وہاں پر صرف میرے اکیلے کی انگلی ہوتی تھی فون کو بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے موڈز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ اپنی مرضی سے اتار دیتے ہیں. اور مجھے نا وہ آپ کی جو آج کی لائیو کی ریکارڈنگ ہے نا، اس میں سے ایک پیس جو ہے نا وہ بہت اچھا لگا ہے. وہ انشاءاللہ میں بھائی سے کسی سے کہوں گا کہ وہ مجھے چاہیے. وہ جو ارائز اینڈ شائن کو یا ارائز اینڈ وارن کو آپ انصر رضا صاحب نے کہا نا انہیں نیچے پھینکیں، وہ کمال ڈائلاگ تھا، مزہ آیا سن کے. جی آپ فنش ہو گئے ہوں گے آپ. جی رائڈر بھائی میں تو جسٹ آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک آپ سے سب سے بات ہو رہی ہے اور ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو اس ڈائلاگ میں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جو اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نائٹ رائڈر بھائی معذرت کے ساتھ، نائٹ رائڈر بھائی معذرت. نوید بھائی ہمارا یہ ایکٹ ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایکٹ ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کے برعکس کوئی ایکٹ کرنا ہے تو آپ کو اجازت ہے.
मैं करूंगा नहीं ना, आपकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी है, वो आपकी मर्जी। दूसरी बात, तस्लीम साहब आप तो ठहर जाए ना एक मिनट, तस्लीम साहब ठहर जाए, वेट करें। दूसरी बात, नवीद भाई सुन लें, हमने कोई चीज गलत नहीं लगाई है, उन्होंने इकरार किया है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है जो हमने लिख के लगाया। शाह साहब वैसे आप क्या कहते हैं ये जो उन्होंने कहा कि मैं हदीस नहीं मानता? सर जी मैं देखें, आपका चीजें लिख देना वो एक अलग बात है, आप इस तरह से पिक्चर बिगाड़ो और पिक्चर बिगाड़ के पिक्चर लगाओ तो क्या बिगाड़ा पिक्चर? यार एक मिनट सब्र कर लो ना डॉक्टर। नहीं बिल्कुल नहीं बताएं भी तो सही ना, इल्जाम तो ना लगाई जाएंगे। बिल्कुल बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा बताएं, क्या बिगाड़ा? राइटर भाई मैं आपको मेरे ख्याल जिसने भी ये ब्रॉड लगाई है उसने आपकी ब्रॉड से मेरे ख्याल ये पिक्चर ली है, सेम पिक्चर। बिल्कुल, इसमें क्या बिगाड़ा बताएं, साबित कर दें क्या बिगाड़ा। भाई मेरी बात सुन लें, आपको लगता है, ईमानदार से बताएं, अगर आपको लगता है कि चीज अच्छी है तो वेरी गुड, मैं आपको कह देता हूँ कि हाँ चीज अच्छी है। नहीं मैं यकीन करें कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको ये पोस्टर बनाना नहीं अच्छा लगा। यार क्या गलत है नवीद साहब, ये भी तो बताएं ना, पोस्टर में गलत क्या है बताएं। कोई अगर हमने ऐसी चीज लगाई हो जो उन्होंने ना कही हो, अच्छा नवीद साहब एक पोस्टर आपने भी मेरे लिए लगाया था, याद है आपको? आपकी पिक्चर थी उसमें, और उसके बाद आपने मेरे अल्फाज, उसके बाद भी आपने मेरे अल्फाज को मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, मेरे पास वो पिक्चर आपने नहीं लगाई पोस्टर पे, पिक्चर की बात कर रहा हूँ। नहीं पिक्चर आपने नहीं लगाई हुई अंसर रज़ा साहब की। यार डॉक्टर डू आप वेट कर लो यार। नहीं देख, मैं तो देखें बात जहाँ पे गलत करेंगे, आपको राइटर भाई के ऊपर यकीन नहीं, राइटर भाई पे यकीन नहीं तो आप बात गलत कर रहे हैं ना राइटर भाई के। आप वेट करें ना, एक मिनट अच्छा एक मिनट राइटर भाई मैं आपको जो आपने लिखा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा फिर बोलिए तो आपको। हाँ चलें बात सुन, कोई बात नहीं, ना काटे कोई बात नहीं। देखें आवाज ना उनका म्यूट ना करें, कोई बात नहीं। देखें मुझे दो बातें हैं, उसमें से एक हफ्ते आपको लिखाई जो है उसका पर एतराज नहीं है, अंसर रज़ा साहब की तस्वीर लगाने पर एतराज है। ये जो हम लिख के लगाया हुआ है डॉक्टर डू भाई ने, इस पर आपका कोई एतराज नहीं है भाई। कहना चाह रहे हैं तस्वीर अगर ना हो तो बाकी ठीक है ना। राइटर भी मसला भला क्या है, देखें आप मेरे अगेंस्ट कोई तहरीर लिख के लगा दो, आई डोंट केयर यार, मैं आपके अगेंस्ट लगा दूं, ये एक इल्जामी जवाब है जो आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह से सपोज अगर मेरी ही तस्वीर आप लोग बिगाड़ो और यानी बना के कोई भी तहरीर लिख दो, आपको लगता है कि यार दिस इज वेरी गुड? ये तो उनके अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज की बात नहीं कर रहा, मैं तस्वीर पे कह रहा हूँ, मैं तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है, लेकिन तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड राइटर भाई, मैं हुज्जत तमाम करने आया था, ठीक है, वो मैंने कर दी। ठीक है डॉक्टर नहीं है, अगर आप तो कह रहे हैं तस्वीर बिगाड़ी नहीं, हाँ वो साबित करने के बिगाड़ने से मतलब तस्वीर लगानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? लगाने में फर्क नहीं है, तस्वीर आपने लगाई हुई, ये बात है, लगाने नहीं चाहिए। ये आपके जो पोस्टर पे तस्वीर लगी है वहां से ली गई है भाई, मैंने इस तरह लगाई। पहले फतवा अपने ऊपर देना कि हमने किस तरह लगाई है, हमने क्या चीज बिगाड़ी है, बताएं जरा तस्वीर में क्या बिगाड़ी है। यार एक मिनट सब्र कर लेना डॉक्टर टू, वेट कर लो यार। नहीं बात जहाँ पे गलत करेंगे वहाँ पे तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, कोई बंदा है, मैंने पोस्टर बनाया, मुझे बताएं क्या गलत लिखा हुआ है इसमें, वेट नहीं कर रहे तस्वीर लगाई है। नवीद भाई वो होस्ट है यार, क्या हो गया है, होस्ट है, होस्ट की ने लगाई हुई है ये तस्वीर, क्या हो गया है? आसफ साहब फिर हाँ आप सियाने हैं फिर, अगर नहीं या तो आप इनकार करें कि जो लिखा हुआ है वो अंसर रज़ा साहब ने नहीं कहा, मैं आपको पेश करेंगे उसका। ये कह रहा हूँ मैं, आप किसी से बात नहीं कर रहा, मैं नाइट राइडर से बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बता दो। अच्छा चलें कर लें जी, नाइट राइडर भाई से जी, नाइट राइडर भाई करें बात इनसे जी। नाइट राइडर भाई मैं सिर्फ ये आपको कहने हैं, मुझे जरा भी नहीं है, तुसी जो ਤੁਹਾਡੀ ब्रॉड है जो मर्जी कर दे पे, मुझे मसला ये हुआ है कि आपको एक अगर सपोज मेरे ऊपर आपको किसी चीज का है गिला, या मैं किसी चीज की वो बात नहीं मान रहा जो आप मुझे कह रहे हो, या मैं किसी भी चीज में आप कहते हो ये मुनाफिक है, तो उसका मतलब ये है कि आप मेरी पिक्चर लगाओगे और उसके नीचे ये चीजें लिखना शुरू कर दोगे, फिर आप में
اور ہر اس بندے میں جو گالی نکالتا ہے اس بندے میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں بالکل 2 دن میں مجھے اتارا ہے، چپ بھی کرایا، لیکن موسٹلی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں جب بھی جاتا ہوں ان کی براڈ پر. ٹھیک ہے، تو نائٹ رائڈر بھائی مشورہ یہ لگا ہے کہ اگر انصر رضا صاحب نے سیم یہی طریقہ اختیار کیا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اگر ہم نے یہیں پہ وہی طریقہ اختیار کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ تو پھر بات ٹھیک ہے، جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر تو مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں نویشت صاحب، یہی کام اگر انہوں نے کیا ہوا ہے پھر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ نائٹر بھائی میں الحمدللہ. لو جی کال آ گئی جی پیچھوں. آپ کو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ریڈی فار ایوری تھنگ نو. ریڈی فار ایوری تھنگ ہو گئے جی. یار اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے نوید صاحب. اوپر آ کے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جی کیا چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح لکھا ہے. پہلے آپ نے کہا جو لکھا ہے اس پہ اعتراض ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ لکھا جو ہوا ہے وہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، اس کا ثبوت ہم پیش کریں گے. تو آپ نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تصویر پہ بگاڑ کے لگائی ہے. ہم نے تصویر میں کیا بگاڑا ہے وہ دکھائیں. 1 منٹ دیجیے گا بس. ہم نے کہا جی تصویر میں کیا بگاڑا ہے دکھائیں، تو کہتے ہیں ساتھ ہی نہیں تصویر بگاڑنے کا مطلب ہے تصویر لگانا، تصویر نہیں لگانی چاہیے. تو پھر فتوا اپنے اتنے لاؤ جڑی تصویر سامنے لائی ہے سویر دی بینر تے، اوہی تصویر دا کراپ کیتی تے لائی ہے. کی بگاڑیا ہے پھر آپ کو سمجھ کچھ آیا نہیں تے اینڈ تے جا کے تے ریڈی فار ایوری تھنگ. ہیلو نائٹ رائڈر بھائی السلام علیکم. وہ کہہ کے گیا کہ اگر تسی بھی یہ تصویراں لانی، وہ کہندے کہ جے تسی بھی یہ تصویراں لانیاں وا تے تہاڈے چ تے قادیانیاں چ کی فرق ہے. انہوں نے یہ گل کہنی سی پر وہ روک گئے. اچھا جزاکم اللہ واسن الجزا. عرفان بھائی ہم آپ کو آدھے گھنٹے سے اوپر آوازیں دے رہے تھے، تب تو آپ اوپر نہیں آئے. جیسے ہی وہ نوید بھائی آئے آپ کو فوراً جو ہے نا وہ چلی مچی ہے، اور آپ نے کہا میں بھی جا کے اوپر جو ہے نا انہیں بولنے دیں جی. بولیں جی، آپ بولیں جی. ہاں جی بھائی، سب سے پہلے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. بات یہ ہے کہ بھائی میں جون صاحب نے مجھے بات کہی ہے نا کہ آپ مجھے 20 منٹ سے آوازیں دیتے رہے ہیں. مجھے کال آئی ہوئی تھی فیملی کی، وہاں پہ بات کر رہا تھا. اور آپ اپنی طرف سے یہ باتیں کوشش کیا کریں کہ نہ بنایا کریں. ٹھیک ہے. آپ نوید بھائی آئے تو کال کٹ گئی فوراً ہی، یہ کاٹ کے آئے ہیں عرفان بھائی؟ نہیں میں بتا تو رہا ہوں کہ میں فیملی کے ساتھ بات کر رہا تھا. اچھا فیملی کے ساتھ، ٹھیک. کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ. اس پہ آپ کا بھی کوئی پوائنٹ ہے جو وہ نوید بھائی ابھی کہہ کے گئے ہیں، اس پہ کوئی ہے کوئی آپ کا پوائنٹ یا کوئی سٹانس؟ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں. آپ نے پکچر لگائی ہے، ٹھیک ہے لگائی ہے، اس کو بڑی بات نہیں. جو سے الفاظ ساتھ لکھے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک کامن ہے جو اس چیز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ایگزیکٹلی یہی ظاہر کر رہے ہیں. اور یہ بات دو ہی اس کے آنسر ہے نا، یا یہ غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. ایسا ہی ہے، ہاں یا غلط ہوگی یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے؟ دوسری بات ہے ڈاکٹر ڈوڈو صاحب، ایک میں بات سن تو لیں. ہاں جی. ہاں یہ ہے کہ دیکھیں وہ حدیث کے منکر نہیں ہے. اور اگر یہ وہ خود کہہ دیں پھر؟ آپ میری بات کو سن تو لو. نہیں میں تو آپ کو ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں. ایک بندہ اگر نہ ہو اور ہم خود لکھ کے لگا دیں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا اگر اس نے خود کہا ہو. پھر آپ ایسے کریں، پہلے آپ ساری بات کو کمپلیٹ کر لیں، پھر میں بعد میں آپ کو بات. چلے کریں جی کریں. کیا خیال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے عرفان بھائی، آپ ہم کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو موقع دیتے ہیں. معذرت. ہاں جی، بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے منکر نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے کہا ہے نا ایسی بات، وہ انہوں نے اس بیس پہ کہی ہے کہ اگر آپ سے میں صرف آپ کا نام پوچھتا ہوں یا آپ میرا صرف نام پوچھتے ہیں تو وہیں تک بات رہے گی نا، نام تک ہی. اگر آپ مجھے نیکسٹ کویسچن میں یہ پوچھیں ابھی آپ کا ایڈریس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری بات تو صرف ایک بات پہ یہ مکمل ہے کہ بھئی آپ نے صرف نام کی بات کی کہ آپ کا نام کیا ہے. دوسرا سوال اب آپ نے کر دیا کہ بھئی ایڈریس بھی بتاؤ. وہ اب میری مرضی ہے میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. سیم یہی طریقہ. عرفان بھائی ڈریس بتانا یا نہ بتانا ایک الگ بات ہے. ایک یہ کہہ دینا کہ میرا ڈریس ہے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں ڈریس کو،
تو وہ الگ بات ہے. تو 1 منٹ دیجیے آپ کو، میں ابھی موقع دیتا ہوں. نائٹ رائڈر بھائی میں پہلے بات تو آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا گیسٹ تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے کیا کہ تھوڑا سا ان کو بھی محسوس ہو کہ اگر کسی گیسٹ کو اس طرح میوٹ کیا جائے تو کیسا لگتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. جی السلام علیکم. جی اچھا عرفان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟